Honorable Speaker, sir, like the Honorable Member has mentioned, the Charbatiya airspace is currently with the Aviation Research Center. And from the Civil Aviation Department, under the leadership of our Honorable Prime Minister, we want to expand the airport network as much as possible. जितने ज़्यादा बन जाए उतना अच्छा है हमारे लिए. But when it comes to these airports being operated or owned by certain different institutions, once the institution agrees to let it operate for civilian operations, only then we come into the picture, sir. So I understand the request coming in from the honorable member, but I would say that if the state also comes in, and if the state and obviously the Aviation Research Center, जिसके पास अभी ये airport है, if they agree to run for civilian operations, then the Ministry of Civil Aviation will go ahead with the proposal, sir. माननीय मंत्री जी. Sir, just a clarification here. With the development of technology, now Aviation Resource Center is being operated in and around Delhi. So that airfield is slowly becoming different. Not a single aircraft is being operated for last 3 years. My second supplementary, sir, is International Civil Aviation Organization, ICAO study shows that the air connectivity has an economic multiplier of 3.25 and employment multiplier of 6.1. My question is, will the minister let us understand the total increase in operational airports since 2014, the impact of widespread and affordable air travel on general population from Tier 2 and Tier 3 cities? Sir, I will give you a general picture from 2014. What were 74 airports in 2014, now in the last 10 years, we have expanded the whole airport network to 157 airports, sir. And I can proudly say that India has reached that passenger capacity limit where they have crossed 5 lakh passengers in one single day. This is a great achievement and a great milestone for the Ministry of Civil Aviation, and we take great pride in that. With the improvement of the network, we have created, the more number of passengers have come into this air travel network, sir. And honorable member has specifically asked regarding the job creation multiplier and the economic multiplier. The numbers have already been mentioned, but one important statistic that I would like to give, sir, if you look at the Chennai Airport is being built in 1350 acres, and the daily passenger movement is 72,000 there. And for 72,000 people moving every day, the kind of job creation Chennai creates today is 20,000 direct jobs. And with the multiplier effect, so one direct job being created in aviation sector results in up to 6 more jobs, either direct or indirect, within the aviation network, sir. And if the ICAO studies the multiplier effect, which is 6.7, in countries like India, the multiplier effect can go up to 15. So if I'm saying 20,000 jobs being created in Chennai airport itself, the indirect jobs can be up to 1.2 lakhs to 3 lakh jobs. So you can imagine with the number of passenger movement that is happening in all the airports, and we have created 80 airports, sir, in these Tier 2 and Tier 3 city networks. So when the passenger movement is there, obviously the job creation also subsequently will happen. And for the specific figure, I'll give it in writing to the honorable member, sir. पीपी चौधरी जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंत्री जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आरसीएस फ्लाइट और उड़ान योजना के तहत में पिछले 10 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है वो अपने आप में सराहनीय है. और जो मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सोजत में, पाली जिले के सोजत में मेरे लोकसभा क्षेत्र में एयर स्ट्रिप अवेलेबल हैं, लेकिन ये अनसर्ड एयर स्ट्रिप है उड़ान डॉक्यूमेंट के तहत में, और 5 राउंड में भी वहाँ पर कोई प्रपोजल नहीं आए. मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूँगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर हुए हैं, वो पाली में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर हुए हैं. उसके लिए 932 करोड़ पाली लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए हैं, और 7,500 करोड़ और दिए जाएंगे. तो अगर जो आपने 5 राउंड लिए हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या ये प्रपोजल जो है, आपका बिडिंग प्रोसेस जो है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है
या इस प्रोसेस को आप क्लोज कर देंगे? तो इन फैक्ट्स को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश के 12 में से एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ है, तो क्या सोजत में पाली जिले के इसमें जो राउंड बिडिंग जो है वो वापस प्रोसेस शुरू होगा या नहीं? Sir, like the honorable member has mentioned, UDAN has been a revolutionary scheme for the civil aviation network, sir. Under the UDAN scheme, whatever unserved or underserved airports are there, the only way we could invite the airlines to run some routes from the airports was giving viability gap funding, and this was happening through the UDAN scheme. उड़े देश का आम नागरिक, यही सोच थी सर हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि आम नागरिक, हमारे देश का जो आम जनता है वो भी हवाई जहाज से ट्रैवल करे, उसको सही करने का काम ये उड़ान के तहत हमने किया है सर। और जो ये पाली का है, हमने आइडेंटिफाई किया है कि सोजत एयर स्ट्रिप पाली में है। पाली एक जैसे कि माननीय सांसद जी ने बताया कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, अभी इंडस्ट्रियल हब भी वहाँ पे बनने वाला है, तो ज़रूर वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी उस जगह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत उपयोग रहेगा। तो उड़ान में एक बार लिस्ट हो जाता है सर कोई भी एयरपोर्ट, उसका कंटिन्यूस बिडिंग में रहता है। अगर इस बार एयरलाइंस नहीं आए तो बाकी दूसरे राउंड में हम ज़रूर लगाएंगे। और अभी उन्होंने प्रश्न भी उठाए, तो ज़रूर हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि वहाँ से किसी भी तरह एक प्लेन को हम चलाएं, तो ज़रूर कंटिन्यूस बिडिंग उसका चलता रहेगा सर। जवाब अच्छा देते हो, लेकिन थोड़ा शॉर्ट और करने लग जाओ, पर जवाब प्रॉपर्ली देते हो। क्वेश्चन में 2-3 का समाधान हो जाता था, तो इसलिए एक्सपेंड करता हूं। तारिक अनवर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। रोज मेरा नहीं। मंत्री जी से स्पेसिफिक क्वेश्चन बिहार को लेकर है कि बिहार में बिना सेवा वाले हवाई अड्डों में के विकास के लिए सरकार की योजनाएं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान के तहत क्या है, और साथ ही ये बताने की कृपा करेंगे मंत्री महोदय कि क्या कटिहार RCS मार्ग को उड़ान 3 के तहत बोली लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है? यदि हाँ, तो कटिहार हवाई अड्डा जो हमारा क्षेत्र है, के संसदीय क्षेत्र है, का कब तक चालू होने की उम्मीद है, ये जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से। वही है पूर्णिया का भी बता देते हैं सर। पूर्णिया का तो वैसे टेंडर हमने कर दिया। हमारे मंत्री महोदय भी जबरदस्त हैं। इतना बताता हूं कि बैठे बैठे व्यक्ति का जवाब मत दो, पर देते ही देते हैं। अब आप देने की आदत पड़ लो, नहीं मानते। नहीं सर, कटिहार का भी कर देंगे सर। कटिहार का वील जस्ट वेरीफाई एंड वील लेट यू नो व्हेन एग्जैक्टली वी कैन स्टार्ट द ऑपरेशंस। एंड अदर एयरपोर्ट इन पूर्णिया आल्सो सर, वी आर इन द फाइनल स्टेजेस। टर्मिनल बिल्डिंग का भी उसका वो टेंडर अभी निकालने वाले हैं सर। श्री कीर्ति आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है कि दुर्गापुर में जो पश्चिम बंगाल में है उसके काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट को एक्सपेंशन की बात हुई है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। वहां पर काफ़ी ज़मीन है, पहले वहां पर एयर इंडिया के फ्लाइट्स भी चला करती थी माननीय मंत्री जी। और वह देश के 5 सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है जहां बड़े बड़े PSUs हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। इसलिए आवश्यकता है कि वहां यातायात को बढ़ाया जाए। उसको लेकर यदि मंत्री जी हमें कुछ जानकारी दें तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दुर्गापुर में अभी तो फिलहाल 650 एकड़ का एयरपोर्ट है सर, जो अभी कोड सी एयरक्राफ्ट जो 2800 मीटर का रनवे भी है, तो काफ़ी बड़ी फ्लाइट्स भी वहाँ पे चल सकते हैं। अभी फिलहाल तो कनेक्शंस दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई के लिए है। अभी कैपेसिटी भी और है सर वही दुर्गापुर एयरपोर्ट से अभी और फ्लाइट्स चलाने की। तो अगर कोई डिमांड स्पेसिफिकली रहता है कि इस रूट्स को कनेक्ट करना है, तो हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से कोशिश रहेगी कि तो वो रूट्स भी चलाएं। राजीव प्रताप रूडी, संक्षिप्त में पूछना। एकदम सरकार ने बड़े नीतियों के तहत 2008 के पश्चात से लेकर आज तक 21 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लागू किया है। हम उस राज्य से आते हैं जहां की आबादी 14 करोड़ है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया था और वर्तमान में जो 2 हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, बिहटा और पटना, जिसमें कोई ग्रीनफील्ड का और ये बड़े विमानों के उतरने की संभावना नहीं है और क्रिटिकल है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार के 14 करोड़ जनता को क्या आप अपनी नीति के तहत एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसका प्रस्ताव आपके यहाँ लंबित है उस पर विचार करके देना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों को पूरे भारतवर्ष में जाकर के जहाज पकड़ना पड़ता है और हम देश के एक
10वां हिस्सा है, माननीय मंत्री। जिसको 75 वर्षों में माननीय एक भी मंत्री जी। अंतर्राष्ट्रीय सर, बिहार हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए बहुत ही मुख्य जगह है सर। वहाँ पे बीटा जो एयरपोर्ट है उसके लिए भी हम 1500 करीब करोड़ खर्च करके सब कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। तो बीटा में भी एक नया टर्मिनल बिल्डिंग का भी हमने शिलान्यास भी किया है सर, अच्छा से किया है। पर जो माननीय सांसद जी बता रहे हैं कि वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी ज़रूरत है, और हमारी भी यही राय है सर, जितने ज़्यादा एयरपोर्ट बनेंगे उतना अच्छा है कनेक्टिविटी के लिए। तो अभी जिस तरह से पटना का एयरपोर्ट है, बीटा का एयरपोर्ट है, ये अभी इंडियन एयरफोर्स के पास है, उसको डेवलप हम कर ही रहे हैं, पर वो भी सैचुरेट हो जाएंगे। जिस तरह से एयर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पैसेंजर का नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा है, तो बिहार जैसे शहर में ज़रूर ये दोनों सैचुरेट हो जाएंगे, तो एक ग्रीनफील्ड की भी आवश्यकता रहेगी। तो जैसे राज्य सरकार उसके लिए लैंड इकट्ठा करके हमें एक ग्रीनफील्ड बनाने के लिए एक साइट क्लियरेंस का भी कुछ ऐसे प्रपोजल करती है, तो ज़रूर उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा है कि बहुत सारे माननीय सदस्य इस विषय पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। एयरपोर्ट के विस्तार के प्रति लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षा बढ़ी है, एक अच्छे संकेत हैं। क्वेश्चन नंबर 145 श्री सोगत राय जी। Sir, question number 145. माननीय सर, मंत्री जी। आंसर हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय Sir, सदस्य। I thank the young and energetic minister for his giving an honest answer, saying that 6 airports built at a cost of 5,260 crores has been handed over to private parties. I would like to know from the Honorable Minister if the name of such private party is Adani, and if so, whether they are being given any further airports to bolster their kitty. I would like an honest answer. Please, you are disturbing the minister. He is replying. What is this? प्लीज Whether the name of the 6 concessionaires is Adani, and whether they are being given any further airports for their benefit. Sir, the answer to the question that he asked is yes. And what he has mentioned, that 5,260 crores which has gone into the investment into those infrastructure of the airports which has been leased out, that has been already given back to the Airport Authority of India also, sir. माननीय सदस्य। नो, Sir, देश में सब पारदर्शी तरीके से होता है। sir, I asked a simple question, not a complicated question. Is as to who these 6 airports were given to. The minister is very intelligent. He has skirted the question. Okay, Maanyaman. Now my question comes now. Actually, you may know that the Niti Aayog and the Department of Economic Affairs, they had recommended that not more than 2 airports to the same entity should be given. Now, with this 6 airports, the total number of airports in the Adani kitty becomes 8, including the Mumbai airport, which they obtained at gunpoint. माननीय मंत्री जी। Now, sir, my question. Question हो गया आपका। Let me formulate the question. I want to know, and I may say that workers in all these airports opposed the privatization. माननीय Earlier- मंत्री जी। Sir. Earlier, I Kolkata and I'll answer, Chennai. Sir, in terms of intelligence, I can't compete with the honorable senior member of the House. He has asked a very simple question. I have answered it very, very simply only, sir. And when it comes to the question that he is answering right now, I'm answering the question only. Why? आप
उनका जवाब दे लीजिए। I've answered it. You already done it. I've answered the question also. Sir, when he talks about Department of Expenditure, Economic Affairs, mentioning it, it is totally false, sir, and it does not arise also. It does not arise also. Niti Aayog also. I'm just mentioning the point why it does not arise in this case, because when the leasing out of these airports happened, sir, a thorough process was followed. And empowered group of Dada सुन लीजिए, उसके बाद you can ask if you want. Sir, when this whole leasing of these 6 airports was done, an empowered group of secretaries, EGOS, was also formed. And who was heading this EGOS? He was the CEO of Niti Aayog, and the Department of Economic Affairs secretary was part of that. When all these peoples were part of the EGOS only, where does the point come that they were opposing this thing? So there was no reason at that. A thorough, competitive, transparent bidding process was done for leasing out of this airport. So whatever the member is saying is wild allegations, sir. There is no fact in all of that. अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो इतना ही मुझे अब सवाल नहीं पूछना क्योंकि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। ओके। और बहुत स्पष्टता से उत्तर दिया कि बिडिंग जो हुई बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई और इसमें कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, लेकिन केवल प्रश्न खड़े करना एक आदत सी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 1463 दुष्यंत सिंह जी, आप जो एक मिनट मंत्री जी, और मंत्री जी सर प्लीज, मंत्री जवाब दें। सर एक तो है ये सरकार इसे भागने वाली नहीं है सर, सीधा सीधा उत्तर देंगे, जो भी अगर ठीक से पूछेंगे तो उसका सीधा उत्तर देंगे। उन्होंने एक और विषय भी उठाया था कि एम्प्लॉइज ने भी इसका विरोध किया था। ये भी बिल्कुल होने के कोई संभावना नहीं है सर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जब ये एयरपोर्ट्स थे तो एक क्लॉज भी है कि 3 साल तक ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लॉइज को उसमें से 60% को जो ये कंसेशनर है जो ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा एयरपोर्ट को, 60% दे कैन रिटेन इट टू देम, एंड इफ दे आर नॉट रिटेन्ड, if the retainment is not possible, then they can come back to, they are with the AI only, all are with the AI only, nobody is losing their jobs, so there is no reason for anyone to be afraid कि ये लीजिंग पे जा रहा है तो हमारे ये नौकरी का क्या होगा। सब कायम है सर। जिनको जो ये प्राइवेट ये ऑपरेटर के पास जाना है वो जा सकते हैं, नहीं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ही है, तो कोई उनके नौकरी के बारे में किसी ने विरोध करने की कोई संभावना इसमें नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 146 दुष्यंत सिंह जी।